ڈپٹی کمشنر جہلم سعیدہ رملہ علی، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر محمد عمران نے کیا۔ ضلع انتظامیہ جہلم کے زیر تمام یہ مقابلہ آج 24 جون سے شروع ہو کر 29 جون تک جاری رہیں گے۔ ان مقابلوں میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، کراٹے اور بیڈمنٹن شامل ہیں۔ یہ کھیل جہلم اور دینا کے مختلف میدانوں میں منعقد ہوں گے، جہاں مقامی کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ تقریب کے دوران ڈپٹی کمشنر سعیدہ رملہ علی نے کہا ہے کہ ضلع انتظامیہ جہلم کی کاوش سے کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے۔ اس قسم کی سرگرمیاں نوجوانوں کو صحت مند تفریح فراہم کرتی ہے اور ان کی جسمانی ذہنی نشوونما میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جہلم سعیدہ رملہ علی نے افتتاحی تقریب کے موقع پر فٹ بال کا میچ بھی دیکھا۔ پہلا فٹ بال میچ پی ڈی خان اور جہلم سلطان کے درمیان ہوا۔ جہلم سلطان نے 1 گول جبکہ پی ڈی خان نے 2 گول کر کے جیت اپنے نام کر لی۔ دوسرا میچ میں سہاوا ٹیم کو شکست دے کر یونائیٹڈ جہلم نے 3 گول کر کے جیت اپنے نام کی۔ تیسرا میچ میں جہلم غازی اور شاہین جہلم نے 1-1 گول کر کے برابر ہوئے۔ پلنٹی پر جہلم غازی ٹیم جیت گئی۔ آخری میچ دینا ٹیم 0 گول جبکہ جہلم ٹائیگر نے 2 گول۔ میچ دینا ٹیم 0 گول جبکہ جہلم ٹائیگر نے 2 گول کر کے جیت اپنے نام کر لی۔ ادبی تنظیم چراغ سخن کے زیر اہتمام معروف شاعرہ فرحانہ عنبر کی پہلی کتاب چلے آؤ نا کی تقریب، رونمائی اور محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طاہر نعیم لاہور، افتخار، شاہد ڈسکا اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شبیر حسین بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ مزدور رہنما لیاقت علی صاحب، سیکرٹری جنرل ڈیموکریٹک ورکرز یونین سی بی اے پھول گروپ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، انہوں نے سی او ڈی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ایک اہم پیغام دیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ چیف سپورٹر حشمت منیر نے بھی ان کے پیغام کو سراہا اور ان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھیں ٹریڈ یونین کا جو اصل جو ذمہ داریاں ہیں وہ کوشش کرتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سارے مسائل حل ہوں۔ ہم اسٹیٹ بینک کی یونین جو ہے کوشش ہم نے پوری کی کہ مذاکرات کے ذریعے ہماری جو انتظامیہ ہے، جو مینجمنٹ ہے، وہ ان مسائل کو جو جائز مسائل ہیں وہ حل کرے۔ اس میں کانٹریکٹ ورکر کی مستقلی ہے، مستقل بھرتیاں کلیریکل نان کلیریکل کیڈر میں، او جی این ابو کی آلریڈی بھرتیاں مستقل ہو رہی ہیں، تو نیچے تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کی ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہوئے ہیں، تو ہم نے مجبوری کی صورت میں جو ہے وہ ٹریڈ یونین کو دھکا دیا جاتا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے، تو وہ جا کے پھر وہ لیگل پروسیس کے آگے بڑھاتی۔ تو آج ہم نے، اللہ کا شکر ہے، ہماری ٹیم نے مشاورت کے بعد جو ہے اس کو آج نوٹس ہم نے سرو کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ملک کی جو مزدور تنظیمیں ہیں، صحافی تنظیمیں ہیں، سول سوسائٹی ہے، جو پارلیمنٹس ہیں، جو عدلیہ ہے، وہ ہمارا ساتھ دے۔ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک کے ملازمین کے ساتھ جو ہے کہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ اور کانٹریکٹ ورکر کی مستقلی نہ ہونا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تنخواہیں مہنگائی کے تناسب سے نہ ہونا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہم اس میں انشاءاللہ آج آئندہ بھی جو ہے اپنا موقف جو ہے وہ اس کو مشاورت کے ساتھ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ تو آج ہم نے جو نوٹس دیا ہے وہ یہ مجبوری کی صورتحال میں دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریڈ یونین جو ریاست نے اس کو حق دیا تھا کہ اگر کوئی انتظامیہ جو ہے وہ طاقت کے بل بوتے پہ کوئی بات نہیں کرتی تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ پھر وہ لیگل پروسیس میں جائے۔ تو ہم نے ہڑتال کا نوٹس دیا ہے۔ ہم نے جو ہے چیئرمین این اے آر سی کو، رجسٹرار ٹریڈ یونین کو، ہم نے جو ہے کونسلیٹر کو، سب کو جو ہے کاپیاں بھیج دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ سارے لوگ اس میں انوالو ہوں گے اور ہمارے ساتھ مل کے جو ہے اس مسئلے کو جو ہے جو ناانصافیاں ورکر کے ساتھ ہو رہی ہیں اس کو حل کریں گے جو ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ملتان سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے صوبائی وزیر آبپاشی محمد قاسم علی پیرزادہ سے سینٹرل پولیس آفس میں ملاقات۔ صوبائی وزیر نے راجن پور سمیت سرحدی اضلاع کی دریائی چوکیوں پر تعینات پولیس افسران اور اہلکاروں کی کارکردگی کو سراہا۔ گینگ کی جانب سے منچن بند پر محکمہ آبپاشی کے عملے پر فائرنگ کی گئی تھی۔ کچا کرمنلز کے حملے کے دوران محکمہ آبپاشی کے عملے کو بھرپور تحفظ فراہم کرنے پر پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ صوبائی وزیر نے دورہ راجن پور کے دوران اپنی 1 ماہ کی تنخواہ بطور انعام حفاظتی منچن بند پر تعینات پولیس ٹیم کو بطور انعام دی۔ پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ٹیم کے حوصلہ افزائی پر صوبائی وزیر آبپاشی کا شکریہ ادا کیا اور صوبائی وزیر آبپاشی کو پنجاب پولیس کے تھانوں کی اپ گریڈیشن پر مبنی خصوصی کتاب تھانے پنجاب پہ پیش کی۔
बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उलग की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ मोहम्मद अब्दुल्ला लक का मुहर्रम हराम के सिलसिले में सर्कल दरिया खान के जुलूस रूट्स का विजिट अमन कमेटी मेंबरान लाइसेंसदान से मुलाकात की। मुहर्रम हराम की आमद के सिलसिले में डीपीओ बकर ने सर्कल दरिया खान में निकाले जाने वाले जुलूस बंजरगाह और दरिया खान सिटी के रूट को चेक किया। दौरान रूट चेकिंग इंचार्ज सिक्योरिटी मलिक सनाउल्लाह, सब इंस्पेक्टर एसएचओ सदर दरिया खान उस्मान सुल्तान और एसएचओ सिटी दरिया खान इंस्पेक्टर इमरान यकूब भी हमरा थे। अमन कमेटी और लाइसेंसदारान से भी मुलाकात की। इनसे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कानून की अमलदारी और अमन अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर फिरकावारियत पर नफरत अंगेज मवाद की तशहीर और शरंगेज मजहबी वाल चॉकिंग पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर में गुज़िश्ता हफ्ते में 14 करोड़ 45 लाख 30 हज़ार रुपए की रेवेन्यू रिकवरी सरकारी खजाने में जमा कराई गई है। ये बात डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत महकमा रेवेन्यू के अफसरान की जानिब से सरकारी वाजबात की वसूली का जायजा इजलास में बताई गई। इजलास में रेवेन्यू रिकवरी की तफसीलात से बताया गया है कि 8 जून 2024 से 22 जून के दौरान आबियाना कीमत में मजमूई तौर पर 3 करोड़ रुपए, ज़रई इनकम टैक्स कीमत में 83 लाख 30 हज़ार रुपए, फीस इंतकालात में 5 करोड़ 30 लाख, स्टैम्प ड्यूटी में 5 करोड़ 30 लाख रुपए और कंडोनेशन फीस के 22 लाख रुपए वसूल करके सरकारी खजाने में जमा कराए गए। इजलास एडिशन डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर, जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा रेवेन्यू के दीगर अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि सरकारी वाजबात की वसूली में मजीद तेजी लाई जाए और फील्ड में बेहतर अंदाज में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी वाजबात की वसूली में सुस्ती और गफलत ना बरती जाए और 30 जून तक सरकारी वाजबात 100% वसूली को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जाए। इजलास में रेवेन्यू से मुतल्लिका दीगर अमूर और अफसरान की इंफरादी कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलपुर असद सरफराज खान प्रॉपर्टी के मुकदमात में जल्द रिकवरी करके रिपोर्ट पेश करें। ताखिर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। डीपीओ भावलपुर असद सरफराज खान तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन और अहकामात की रोशनी में डीपीओ भावलपुर असद सरफराज खान की रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी के दौरान 42 से ज़ायद शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए। डीपीओ ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को बारी बारी तफसील से सुना और इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को बजरिया फ़ोन कॉल बर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकाम जारी किए, जबकि मुतअद्दिद एसएचओज़ को खुली कचहरी में तलब करके बराह रास्त जवाब तलबी की। खुली कचहरी में डीपीओ ने मुतअद्दिद साइलिन की दरख्वास्तों पर इंक्वायरी का हुक्म दिया। मुतअद्दिद पर एसएचओज़ और तफ्तीशी अफसरान से खुली कचहरी में मुतल्लिका शहरी की मौजूदगी में मुकदमात की प्रोग्रेस ली। डीपीओ ने खुली कचहरी में शहरियों से बात करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद है कि शहरियों और पुलिस अफसरान के दरमियान खलज ना रहे और तमाम जायज़ मसाइल बर वक्त मेरिट पर हल हों। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस भावलपुर के बॉडी का महाना इजलास हुआ, जिसकी सदारत मेराज खान अब्बासी ने की और मेज़बानी के फ़राइज़ शाहिद इरफान शेख ने किए। इजलास की कार्रवाई का आगाज़ सीनियर नायब सदर मौसम खान गोपान ने तिलावत कलाम पाक से किया। बादशाह शाहिद इरफान शेख का कहना था कि हमें महाना इजलास बाकायदगी से करने चाहिए और अपना तंजीमी ढांचा मुकम्मल करना चाहिए ताकि हम अपनी आइंदा कार्रवाई अमली बुनियादों पर पूरी कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि आज का एजेंडा स्पेशल चाइल्ड लेबर जो कि बच्चों की जबरी मुशक्कत के हवाले से मीटिंग को तश्कील दिया गया ताकि हम लोग हुकूमती इदारों पर ये जोर डाल सकें कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान से जबरी मुशक्कत का खात्मा किया जाए, बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब किया जाए और इनके जहनों को पाकिस्तान की फलाह और तामीर में मुस्बत किरदार अदा करने का मौका मिल सके। अब्दुल करीम ताहिर ने अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में मुशावरत की और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग प्रोग्राम का तज़किरा किया ताकि अपने ओहदेदारान और मेंबरान को इनकी जिम्मेदारियां और हदबंदियां बताई जा सकें। तंजीम में तमाम ओहदेदारान ने शिरकत की, जिसमें चीफ कोऑर्डिनेटर ह्यूमन राइट्स शाहिद इरफान शेख, सीनियर नायब सदर ह्यूमन राइट्स मौसम खान गोपांग, नायब सदर मेराज खान अब्बासी, अब्दुल करीम ताहिर, इफ्तिखार, आरिफ, रहमत अली, शबीर अहमद कलियार, यासिर मेराज, गुलशेर, मलिक सलीम अब्बास, मेहर मोहम्मद मुजम्मिल, सजाद हुसैन भट्टी, मेहर अली और राबिया मंजूर ने अपनी अपनी हिस्से की जिम्मेदारियां निभाने का अहद किया। शाहिद इरफान शेख का कहना था कि हम बहुत जल्द तंजीम को अमली मराहल में लेकर आएंगे और बहुत जल्द लोगों को आगाही कैंप लगाएंगे जिसमें लोगों को ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस के एतराज़ और मकासद समझा जा सकेंगे।
मिली अदबी पंचायत की ज़ेर तमाम मरूफ एंकर पर्सन दबंग खातून सहाफ़ी मुमताज़ कालम निगारा बेमिसल खतीब और अदीब और पाकिस्तान में बोली लिखी समझी और पढ़ी जाने वाली तमाम ज़ुबानों की उभरती हुई तख्लीक़ दुख्तर तलागंग के जन्मदिन पर एक शाम मोहतरमा निमरा मलिक के नाम, जिसमें शहर शहर से नामवर तख्लीक़कारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और साहिबा शाम को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब की सदारत इज़्ज़त माब प्रोफेसर एतबार साजिद ने की, जबकि शुरा में सरपरस्त आला मिली अदबी पंचायत मियाँ तारिक जावेद, सदर मिली अदबी पंचायत ख्वाजा जमशेद अमाम, सेक्रेटरी जनरल सैयद बदर सईद, आली मतबत मलिक मुश्ताक हुसैन शाह, उस्ताद शायर अली मलिक, सरापा खलूस इब्न नियाज, पैकर नफीस तारा, अमीन कोमल, हुमा जहत शख्सियत, मेराज कैसर, उर्दू इजहार और बयान का मोतबर हवाला, मोहतरम काविश सिद्दीकी, मोहतरम राय शफीक, मोहतरम कालम निगार शहजाद असलम राजा, चौधरी जावेद यूसुफ, नसर नासिफ अवान, एडिटर जहान पाकिस्तान अकील अंजुम अवान, मरूफ स्क्रिप्ट राइटर असद नकवी, मरूफ सहाफ़ी अली रज़ा रहमानी, मोहतरमा फलक जाहिद साहबजादा, हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी, मरूफ सियासी समाजी रहनुमा हुमायूं यूसुफ खिची, मोहतरम अमीर हमजा, नौजवान समाजी रहनुमा तलहा अहमद, साहिब गयान आफ्ताब जावेद, मोहतरमा फरहा वीद, मोहतरम नवीद अनवर, पैकर खलूस शहबाज अकबर उल्फत, नायब सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स इज़्ज़त माब चौधरी उस्मान काहलू, हुसनैन तुफैल, मोहतरम शहजाद वासिक, मरूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन ज़मीर आफाकी, मोज़्ज़िन शहर की बड़ी तादाद पहले कॉस्मोपॉलिटन क्लब के लाइब्रेरी रूम और बादज़ा पुरफ़िज़ा लॉन में रात गए तक मौजूद रहे। मलकवाल से रिपोर्ट करें असलम जावेद। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की जेर निगरानी मुमकिन सैलाब से निपटने के हवाले से रेस्क्यू डॉल 122 के जेर तमाम दरिया चनाब कादराबाद बैराज के मुकाम पर दूसरी अमली मशकों का इनकार। डिप्टी कमिश्नर ने मुनाकिदा अमली मशकों का मुआयना किया। तमाम मुतल्लिका महकमों की जानिब से रेस्क्यू फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए थे। डिप्टी कमिश्नर का मुमकिन सैलाब से निपटने के हवाले से किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की जेर निगरानी मुमकिन सैलाब से निपटने के हवाले का इनकार किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू डॉल 122 इंजीनियर इमरान खान ने डिप्टी कमिश्नर को रेस्क्यू कैंप्स का दौरा कराया और तफसीली ब्रीफिंग दी। फर्जी मशकों में रेस्क्यू डॉल 122 के अहलकारों ने सैलाब ज़दगान को बजरिया कश्ती महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के साथ साथ जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देते हुए फील्ड अस्पताल मुंतकिल करने की अमली तरबियत का मुजाहरा किया। इसी तरह दरिया के तह में डूबते शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू के गोताखोरों का अमली मशक का भी मुजाहरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने रेस्क्यू डॉल 122 समेत तमाम इदारों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहना था कि अमली मशकों से तमाम इदारों की दस्तियाब वसाइल आपस में बाहमी राब्ता मुमकिन सैलाब पर रिस्पांस और हालात की तैयारियों का पता चलता है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कामुकी में मोजे से दूध पीने से 2 कमसन भाई जाँ भाग हो गए, जबकि तीसरे बच्चे की हालत नाजुक है। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी के मोहल्ला मुस्लिमगंज के राना उस्मान की अहलिया ने अपने 3 बच्चों 4 साला हनान, 2 साला अब्दुल वासे और 6 माह के अंशर को किचन में पड़ा हुआ दूध पिलाया, जिससे पीने के कुछ देर बाद ही बच्चों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर कुछ देर बाद मौत हयात की कशमकश में रहने के बाद हनान और इसकी बहन अंशर दम तोड़ गए, जबकि अब्दुल वासे को नाजुक हालत में लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। कामुकी पूरे शहर में शोक का समा, मां को गशी के दौरे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर नादरा जोनल ऑफिस में शहरियों के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर नादरा रीजनल हेड ऑफिस कोयटा की जानिब से नादरा ऑफिस बारखान में शहरियों के मसाइल के मौसर हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। काफ़ी तादाद में शहरी खुली कचहरी में शरीक हुए। ज़काल असिस्टेंट डायरेक्टर जोनल इंचार्ज बारखान ने शहरियों के मसाइल सुने। मसाइल में तारीख पैदाइश का मसला, फैमिली मेम्बरान में गैर अफराद का इंदराज, डबल शनाख्ती कार्ड के इजरा और दुरुस्तगी नाम शामिल थे। इस मौके पर ज़काल असिस्टेंट डायरेक्टर जोनल इंचार्ज बारखान ने शहरियों को अपने कागजात के हमरा 9 जुलाई की कमेटी में पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा खुली कचहरी 18 जुलाई को मुनक्किद की जाएगी। 18 ज़िलहज मौला अली अलैहिस्सलाम की ताजपोशी के हवाले से जलवार में भी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस हवाले से पेश है जलवार से हमारे नुमाइंदे साउद बाजार की ये रिपोर्ट। जी साउद, मज़ीद आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जरवार शहर के बरगाह पर ईद कदीर के हवाले से प्रोग्राम मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं यहाँ के अज़ादारों से उनका क्या कहना है। अल्लाह के हुक्म से आज मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की जो है ताजपोशी का दिन है, उसी हवाले से नबी का भी ये मसला था कि ये इस प्रोग्राम में मौला की ताजपोशी हुई। इसी हवाले से
प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं। ये बड़े में बड़ा दिन है, ईद गदीर का दिन है। अल्लाह के हुक्म से ये दिन बना, रसूल पाक को ये वही नाज़िल हुई, ईद गदीर तो मौला फहाजा अली मौला। आज के दिन 1,30,000 के मजमे में ईद गदीर के मौके पर सरकार मोहम्मद अरबी ने खिताब किया है और तमाम के मुखातिब होकर सरकार ने फरमाया है, मन को तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। दरबार में मौला अली अलैहिस्सलाम की ताजपोशी का प्रोग्राम है, जिनमें काफ़ी बमों ने शिरकत की है। और उसके बाद अपने अदादारों की बातें सुनी। उन्हों का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी हमने ईद गदीर का प्रोग्राम मनाया। कैमरामैन टीम के साथ सऊद बोगरा। बदीन डिप्टी कमिश्नर यासिर भट्टी के ज़ेर सदारत दरबार हाल में मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम के मुतालिक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में SSP बदीन समेत बदीन के तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान और मुख्तलिफ मकात पर फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम और ज़ाकिरीन ने भी शिरकत की। इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर बदीन ने हदायत की कि मातमी जुलूसों की गुजरगाहों और मजालिस के मकामात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ सफाई सुथराई और बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर बदीन यासिर भट्टी ने उलमा और रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो मुहर्रम हराम के दौरान महकमा दाखिला के ज़ाब्ता अखलाक और SOPs पर अमल दरामद करते हुए मजहबी हम आहंगी, इत्तेहाद और अमन कायम रखने के लिए ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों के अफसरान से राब्ते में रहे और नफरत फैलाने वाली तकारीर और सोशल मीडिया पर भी किसी किस्म की कोई मजहबी पोस्ट और कमेंट से इज्तनाब किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर माथैलो नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस समाअत सेकंड सिविल जज मीरपुर माथैलो की अदालत में गवाहों के 164 के बयानात कलमबंद करने के लिए समाअत की गई। दोनों अफ्रीकैन के वकीलों की जानिब से 164 बयान मुतालिक दलाइल पेश किए गए। 164 बयान को शामिल करने के लिए अदालत ने इजाजत दे दी। कल दोबारा नसरुल्लाह गडानी के केस में गवाहों के बयान कलमबंद किए समाअत मुकर्रर कर दी गई। वकील सलाहुद्दीन हमारी अदालत से दरख्वास्त थी कि अदालत 164 के बयान रिकॉर्ड करे। वकील सलाहुद्दीन पहवर मुल्जिम के वकील ने 164 के बयान की मुखालफत की, मगर अदालत ने हमारी दरख्वास्त मंजूर करते हुए बयान रिकॉर्ड करेगी। वकील सलाहुद्दीन पहवर। अब रुक करते हैं घोटकी का हमारे नुमाइंदे रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक 20 रोज कबल कादरपुर से अगवा होने वाले नौजवान मुगवी आरफ मिरानी की बाजियाबी के लिए बुरसान का DSP घोटकी के ऑफिस सामने एहतजाजी मुजाहरा। नौजवान मुगवी की बाजियाबी का मुतालबा। नौजवान मुगवी के बुरसान ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि 20 रोज कबल डाकुओं ने आरफ मिरानी को कादरपुर से अगवा किया था, जिसकी बाजियाबी के लिए डाकुओं ने 20 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया है और तावान अदा न करने की सूरत में डाकुओं ने मुगवी को कत्ल करने की धमकी दी है। तावान अदा न करने की सूरत में डाकू मुगवी को कत्ल कर देंगे। मुजाहिरीन ने SSP घोटकी DIG सखर और आला काम से मुतालबा करते हुए कहा है कि हम मेहनत कश हैं, तावान की इतनी भारी रकम अदा नहीं कर सकते। पुलिस डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करके डाकुओं के चुंगल में फंसे हुए नौजवान मुगवी को बाजियाब कराने में मदद करे। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा है कि अशिया खुदनोश की कीमतों में इस्तेहकाम रखने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अपना फ़ाल किरदार अदा करें, जो काबिल तारीफ़ है। रोज़ाना की बुनियाद पर दुकानों का मुआयना और खिलाफ वर्जी करने वालों को न सिर्फ भारी जुर्माना किया बल्कि FIR का इंदराज भी कराया गया। ये बात उन्होंने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के साथ डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ग्राम फरोशी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मिलावट को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर की दुनिया में रुक करते हैं। भावनगर की जानिब सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत वज़ीर आला पंजाब इनिशिएटिव पर अमद दरामद का जायजा लेने के लिए अफसरान का इजलास मुनक्किद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से वज़ीर आला पंजाब इनिशिएटिव पर अमद दरामद बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने अफसरान को कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने का हुक्म दिया और कहा कि तमाम महकमे वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक इनिशिएटिव पर अमद दरामद करके गवर्नेंस को बेहतर बनाएं। अवामी खिदमत मिशन के तहत तमाम महकमे मुतहरिक होकर काम करें। शहरियों और दही इलाकों में सफाई सुथराई नुमाया नजर आनी चाहिए। तजावजात और वाल चाकिंग को ख़त्म कराने का सिलसिला जारी रखें। गैर फाल स्ट्रीट लाइट्स फंक्शन होनी चाहिए। मेन होल्स कवर और सीवरेज लाइन साफ होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने मजीद कहा कि आवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट की फिल्टर्स बर वक्त तब्दील किए जाएँ। इनके अलावा अगर किसी जगह गड़े हों तो फौरी पेश लगाएं और सुथरा पंजाब प्रोग्राम सरगर्मियों में भी मजीद तेजी लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि मजीद रोटी और नान की नोटिफाइड कीमतों में
عمل درآمد کے لیے زیادہ سے زیادہ انسپیکشن کی جائے، خلاف ورزی پر تندور اور ہوٹل مالکان کو جرمانے کیے جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو معیاری اشیاء خودنوش کی فراہمی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے ملاوٹ شدہ اشیاء خودنوش فروخت کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ بیورو چیف سید اے علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق خطرناک کار لفٹر گینگ کے خلاف اسلام آباد پولیس کی بھرپور کارروائی۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی انویسٹیگیشن حسن جہانگیر وٹو نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ خفیہ اطلاع پر اسلام آباد پولیس کے حبیب اللہ اور میاں نور اللہ ہمراہ ٹیم کار چوری انسداد کے لیے علاقہ تھانہ سیکریٹریٹ مری روڈ نصر کشمیر چوک اسلام آباد میں ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ بوقت صبح 6 بجے مری کی طرف آنے والی سفید ہونڈا کار لگی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے کرولا برنگ سفید مشکوک جان کر رکنے کا اشارہ کیا۔ دونوں گاڑی میں سوار افراد نے ناکہ بندی پر رکتے ہی پولیس پر کلاشنکوف اور پسٹل سے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اپنے ہی ساتھی ملزمان کی فائرنگ سے 3 ملزمان موقع پر جاں بحق جبکہ ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جس کی طبی امداد کے لیے پمز اسپتال اسلام آباد میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔